Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. In the last video, we have discussed about bioinorganic chemistry. In this video, we will discuss about acid and bases. What are different theories of acid and bases? What is hard soft acid base principle and many more things. Now, what are some we will discuss some common acids and bases present in household uses. Like acetic acid is present in flavoring and preservative. Citric acid is used in flavoring. Ascorbic acid is in vitamin C, nutritional supplements. Aluminium salts in baking powder with sodium hydrogen carbonate. Now some bases like NaOH is used in oven and drain cleaners. Ammonia is used in household cleaner. Sodium carbonate in water softener and grease remover. Sodium hydrogen carbonate in fire extinguisher, rising agent in cake mixes, mild antacid. Sodium phosphate is cleaner for surface before painting or wallpapering. These are some common acids and bases used in daily household things. Now, what is definitions of acid and base? Now, first definition was Arrhenius acid-base definition. This is the earliest acid-base definition which classifies these substances in terms of their behavior in water. According to Arrhenius concept, acid is a substance with H in its formula that dissociates to yield H3O positive. Means that compounds which gives H3O positive in water are called acid. Means that dissociate in H positive. And similarly, base is a substance with OH in its formula that dissociates to yield OH negative. When an acid reacts with a base, they undergo neutralization. Now, according to Arrhenius concept, it is limited to only water reactions in water. Substances which dissociate into H3O positive are acid, which in OH negative are bases. Now, strong acid dissociate completely into ions in water. जो strong acid होगा वो आपका water में completely dissociate हो जाता है. जैसे आपका HA कोई acid है आपका water के साथ reaction करके क्या होगा आपका H2O के साथ H reaction करके H3O positive plus A negative means completely dissociate हो जाएगा आपका. डाइल्यूट सोल्यूशन है जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि आपका सोलवेंट वाटर ज्यादा अमाउंट में है या सोलवेंट ज्यादा अमाउंट में है और एसिड कम अमाउंट में तो उसमें आपका कोई भी एसिड का मॉलिक्यूल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. और जो वीक एसिड है वो आपका स्लाइटली डिसोसिएट होता है आयंस में. जैसे आपका Ha है प्लस H2O तो H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव है. तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जो वीक एसिड है क्या होगा मोस्टली Ha मॉलिक्यूल्स है वो अनडिसोसिएटेड मिलेंगे आपका. तो जो अनडिसोसिएटेड पड़े रहेंगे मींस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस में. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं. जो आपका कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम वो होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन. तो जो आपका के इक्विलिब्रियम है आपका के ए है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वो इक्वल होता है आपका H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय HA कंसंट्रेशन. मींस स्ट्रॉन्गर जितना स्ट्रॉन्गर होगा एसिड उसमें H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी और उसकी के की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी. सिमिलरली कोई वीक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन की भी आपका क्या होगा कम होगा और के ए की वैल्यू भी क्या होगी आपकी कम होगी. अब रिलेटिव स्ट्रेंथ है जो एसिड और बेस की. जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपके जर्नली क्या होते हैं आपके हाइड्रोहेलिक एसिड HCl HBr HI या फिर जो एसिड्स जिसमें जो ऑक्सीजन एटम्स का नंबर है वो आपका 2 या 2 से ज्यादा है. जो आपका HNO3 है H2SO4 है HClO4. वीक एसिड्स में आपका हाइड्रोहेलिक एसिड में आता है आपका HF में आपका क्योंकि आपका वीक एसिड में आता है आपका बॉन्ड लेंथ है जो स्मॉल होती है इसकी. सिमिलरली जब आपका एसिड्स इन विच H इज नॉट बॉन्डेड टू ऑक्सीजन और ए हेलोजन जैसे HCN है. जो एसिड है जिनमें ऑक्सीजन का नंबर
दो या दो से कम है, जैसे HClO, HNO2। कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनका जनरल फॉर्मूला RCOOH होता है, ये भी आपके क्या आते हैं, वीक एसिड में आते हैं। अब बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं आपके वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स कंटेनिंग O2 नेगेटिव और OH नेगेटिव आयंस। कैटायंस आर यूजुअली दोज ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेटल्स। जो मोस्ट एक्टिव मेटल्स के जो कैटायंस है वो भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। जो मेटल हाइड्रोक्साइड है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के, वो भी आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं। जो वीक बेसिस में जैसे आपका अमोनिया, अमीन्स हैं आपके, वो सारे आपके किस में आते हैं, वीक में। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर क्या है आपका, डिसोसिएट वेरी स्लाइटली इनटू आयंस इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस नोन एज ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन। जो वाटर है आपका आयनाइज फॉर्म में मिलता है कई बार H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर और सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब जैसे आपका हमेशा आपका ये इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपका, ऐसे होता है इनवर्स चेंज होता है। जैसे आपका H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपका OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, कम होगी। नेक्स्ट आपका ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस डेफिनेशन। जो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है आपका, प्रोटॉन डोनर होता है। एनी स्पीसीज डेट डोनेट्स H पॉजिटिव आयन। कोई भी स्पीसीज जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो आपका एसिड, और बेस होता है आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर। एनी स्पीसीज डेट एक्सेप्ट एन H पॉजिटिव आयन। तो ये आपका अरेनियस कंसेप्ट से अलग है। अरेनियस में था आपका वाटर की रिएक्शन, जो रिएक्शन वाटर में हो रही है जनरली वहीं पे हम देखते हैं कि H पॉजिटिव डोनेट कर रहे हैं तो आपका एसिड, OH नेगेटिव कर रहे हैं तो बेस। तो ये वाइड कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल हो सकते हैं ब्रोंस्टेड लोरी डेफिनेशन एज कंपेयर टू अरेनियस डेफिनेशन। इसके अकॉर्डिंग जो भी H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो आपका एसिड, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा वो बेस। तो आपके एसिड्स होते हैं प्रोटॉन डोनर और बेस होते हैं आपके प्रोटॉन एक्सेप्टर। ए बेस मस्ट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड टू H पॉजिटिव। तो बेस के पास क्या होना चाहिए, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो कि H पॉजिटिव के साथ जो कंबाइन कर सके। जो एसिड बेस रिएक्शंस है उनको आप प्रोटॉन ट्रांसफर प्रोसेस भी बोलते हैं। और जैसे ये दिखा रखा है एसिड और बेस की रिएक्शन इन वाटर, जैसे HCl प्लस वाटर। अब HCl प्लस वाटर में देखो आपका रिएक्शन हुआ है तो HCl तो क्या कर रहा है यहाँ पे H पॉजिटिव डोनेट करके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका जो H पॉजिटिव डोनेट करता है उसको आप बोलते हैं एसिड। तो ये आपका प्रोटॉन डोनर है HCl है यहाँ पे एसिड, और बेस क्या कर रहा है, H2O क्या कर रहा है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है जिससे वो H3O पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये आपका एक्सेप्ट कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया, बेस। ऐसे ही यहाँ पे अब देखो आपका ये फर्स्ट रिएक्शन थी HCl प्लस H2O, इसमें HCl एसिड और H2O एज ए बेस बिहेव कर रहा है। जो सेकंड रिएक्शन है NH3 प्लस वाटर की, इसमें देखना आपका NH3 है वो आपका हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है तो मींस वो बेस है, और वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो ये आपका क्या है, डोनर है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एज ए एसिड बिहेव कर रहा है आपका। कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी बोल सकते हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है आपका, जब भी आपका एसिड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद जो स्पेसिस आएगा उसको बोलते हैं उसका एसिड का कंजुगेट बेस। या फिर अगर बेस हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है तो उस बेस का जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद जो आएगा आपका आयन या कंपाउंड वो आएगा उसका कंजुगेट एसिड। जैसे आपका यहाँ पे H2S है, H2S आपका हाइड्रोजन डोनेट करके HS नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपका एसिड है, और ये SH नेगेटिव है, ये इसका कंजुगेट बेस है। सिमिलरली जो NH3 है ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करके बना रहा है NH4 पॉजिटिव। तो जो NH3 है ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसलिए ये बेस है, लेकिन जो इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद जो कंपाउंड आया ये इसका कंजुगेट एसिड है। क्योंकि रिवर्स भी पॉसिबल है रिएक्शन, अगर रिवर्स कराएं तो NH4 पॉजिटिव क्या करेगा, NH3 में कन्वर्ट होगा तो NH4 पॉजिटिव क्या है, एसिड। तो मींस ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं इनको आपका। और जैसे H2S एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस हो गया SH नेगेटिव, और NH3 आपका बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड हो गया NH4 पॉजिटिव। किसी भी कंपाउंड का आपको कंजुगेट बेस बताना है, जैसे एसिड का आपने कंजुगेट बेस बताना है तो हाइड्रोजन माइनस कर देंगे कंपाउंड के, एसिड के स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा उसका कंजुगेट बेस। और अगर कंजुगेट बेस, किसी बेस का हमने कंजुगेटेड एसिड बताना है तो उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करके जो आपका आएगा कंपाउंड या आयन वो आपका उसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। अब जैसे
H2S और HS ये आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, जिसमें HS नेगेटिव कंजुगेट बेस है और H2S एसिड है। ऐसे ही आपका NH3 और NH4 पॉजिटिव भी आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, जिसमें आपका NH4 पॉजिटिव आपका कंजुगेटेड एसिड है और NH3 आपका बेस है। और जो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस रिएक्शंस होती है, इनमें क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाते हैं। यहाँ के कुछ एसिड बेस के पेयर दिखा रखे हैं। अब नेट डायरेक्शन है जो रिएक्शंस की, आपका क्या होता है, जनरली आपका जो स्ट्रेंथ है एसिड्स की उस पर डिपेंड करेगी। आपका रिएक्शन विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड एंड बेस। वीकर एसिड और बेस की फॉर्मेशन को फेवर करती है रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक ये भी होता है आपका, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो उसका कंजुगेट बेस होगा वो हमेशा वीक होता है। ऐसे ही अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, वीक होगा। और वाइस वर्सा, अगर मतलब आपका बेस वीक है तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर एसिड आपका वीक है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाइस वर्सा होता है आपका। एसिड बेस पेयर में आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड वो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा आयोनाइजेबल प्रोटॉन है, उनको आप बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। जैसे H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन्स डोनेट कर सकते हैं, H3PO4 है, आपका 3 हाइड्रोजन्स डोनेट कर सकते हैं। तो इस टाइप्स के एसिड को आप बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड, जिनके पास एक से ज्यादा आपका प्रोटॉन्स होते हैं डिसोसिएट होने के लिए। आपका ये आपका दिखा रखा है, कोई बेस है, जैसे आपका CH3NH2 है, ये आपका बेस है, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका एसिड। अनाइंस हैं जो वीक एसिड के, आपका वो वीक बेस की तरह काम करते हैं। जैसे आपका HA है, HCl है आपका, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो इसका कंजुगेट बेस है Cl नेगेटिव, वो क्या होगा, वीक बेस होगा। ऐसे ही H2SO4 आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा। अब जैसे CH3COOH आपको पता है वीक एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट बेस है CH3COO नेगेटिव, वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बाकी जो स्ट्रेंथ्स है आपका एसिड्स की, डिफरेंट एसिड्स की, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।